Hello dear students, today's topic is digestion, absorption and metabolism of carbohydrate, right? Next, carbohydrates in diet basically are of three type. First one is the polysaccharide, glycogen, amylose and amylopectin. Second one is the disaccharide. For example, sucrose and lactose. Sucrose is glucose plus fructose and lactose is glucose plus galactose. And then after monosaccharides, are of three: glucose, fructose, and galactose. Other carbohydrates in our body, for example, alcohol, lactic acid, pyruvic acid, pectins, dextrins, and the cellulose. These are the carbohydrates usually present in our diet. Now, digestion of the carbohydrate starting from the mouth. Into the mouth, digestion is taken place by the salivary amylase. Into the stomach, digestion is taken by the weak amylase, and into the intestine by the pancreatic amylase, which is secreted by the pancreas and enter into the intestine and play an important role for the digestion of carbohydrates. Then maltase, sucrase and lactase. पीछे क्या है यहाँ पे एज, दैट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? Starting from the mouth, salivary amylase, into the stomach, weak amylase, and into the intestine, pancreatic amylase, maltase, sucrase, and lactase. Absorption of the carbohydrate. Absorption of glucose by the sodium co-transport. Now absorb किस तरह से होगा? हमने डाइट में लिया, वो कहाँ पे होगा? इंटेस्टाइन में. अब इंटेस्टाइन में से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा. वो कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्ट. व्हाट यू मीन बाय को ट्रांसपोर्ट? So into the cell junction, what happens? There is the various pump for the transportation. So what do you mean by the co-transport? If one electrolyte or any molecule enter inside the cell and at the same time any other molecule or the solute come out from the cell, this type of the transportation is known as the co-transport. For example, this is the lumen of intestine and this is the wall of intestine in where the cells are present, epithelial cells are present. Now here the glucose is present into the intestine. Glucose is present because it is contained into the dietary part, right? Now it enter into this cell, and how it's enter? With the help of sodium co-transport. Now what you mean by sodium co-transport? So यहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर आएगा और सेल में से सोडियम जो है वो ल्यूमेन के अंदर जाएगा और ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगी और इस टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलेंगे को ट्रांसपोर्ट, राइट? तो ग्लूकोज का को ट्रांसपोर्ट जो है वो सोडियम के साथ होगा. नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज, सेम जिस तरह से ग्लूकोज का होगा उसी तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज भी होगा. एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, माने कि उसका प्रसरण हो जाएगा, इजीली डिफ्यूजन हो जाएगा और सम ऑफ द फ्रुक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एज वेल. And once it converted into the glucose, now by this way the absorption is taken place. Let's learn in a detail. Now the absorption of glucose. Glucose is transported from lumen of small intestine. हमने डाइट में लिया ग्लूकोज तो वो सबसे पहले कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. वहां से कहाँ जाएगा? इनटू द एपिथेलियल सेल ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे यहाँ पे क्या होगा? एपिथेलियल सेल. अभी ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट है इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, उसमें से हमको कहाँ पे लेके जाना है? दिस एपिथेलियल सेल के अंदर, राइट? बाय मीन्स ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्ट. बाय मीन्स ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्ट. हमने अभी स्टडी किया को ट्रांसपोर्ट माने कि ग्लूकोज जो है वो ल्यूमेन में से सेल में आएगा और एट द सेम टाइम सोडियम जो है वो सेल में से ल्यूमेन के अंदर चला जाएगा. एंड दिस टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज द को ट्रांसपोर्ट. चलो नेक्स्ट यहाँ पे आने के बाद फ्रॉम एपिथेलियल सेल ग्लूकोज इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द पोर्टल वेन. यहाँ से अब
यहाँ सेल में आ गया, वहां से कहाँ जाएगा, पोर्टल वेन, एंड पोर्टल वेन कहाँ पे होती है, लीवर में। तो फाइनली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो ये हो गया लीवर। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में से, उसके सेल में से फाइनली ग्लूकोज को कहाँ पे लाए हम, लीवर में। एंड फ्रॉम हियर इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड। नाउ लीवर में से जाएगा ब्लड में बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं, जिसमें एनर्जी लगेगी, राइट। एंड एनर्जी कहाँ से आएगी, फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज होगा। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में है, वहां से एपिथेलियल सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से पोर्टल वेन, पोर्टल वेन में से रिलीज होके वो लीवर में जाएगा, लीवर में से वो ब्लड के अंदर जाएगा, और फाइनली उसका ब्रेकडाउन होके एनर्जी लिबरेट होगी विद ब्लड में। कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और उसके लिए एनर्जी जो होगी वो ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी की वजह से मिलेगी। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फर्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको इस तरह से याद रखना है, फर्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड वन इज द पोर्टल वेन, थर्ड वन इज द लीवर, देन आफ्टर सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ब्लड में जो है वो ग्लूकोज चला जाएगा। अब क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन की मदद से, राइट, अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा होगा तो बेसिकली क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज होते हैं वो अपटेक बाय द इंसुलिन, और इंसुलिन ये ग्लूकोज को कहाँ पे भेजते हैं, मसल एंड अदर टिश्यूज, राइट। So the metabolism of carbohydrate, now what do you mean by the metabolism? Metabolism involves the oxidation of the carbohydrates to release the energy. अब जो हमने ग्लूकोज लिया है और कार्बोहाइड्रेट्स जो लिए हैं उनका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। बेसिकली मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, की मदद से कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे और रिलीज दी एनर्जी। जितनी एनर्जी बॉडी को फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए चाहिए उतनी वहां पे यूज होगी। दैट मीन्स एनर्जी इज यूज्ड बाय द टिश्यू फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। हमने यहाँ पे मेटाबॉलिज्म क्यों करवाया कार्बोहाइड्रेट का, बिकॉज हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए, रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गया, डाइजेस्टिव फंक्शन हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन हो गया, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन हो गया, उसके लिए हमको क्या चाहिएगा, एनर्जी। और ये एनर्जी जो है वो कहाँ से आएगी, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी जो एनर्जी बचेगी, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड इनटू द टिश्यू, फॉर एग्जांपल मसल और एनी अदर टिश्यू। नाउ हियर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सो बेसिकली क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट इज दी, हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से ग्लूकोज सबसे पहले पोर्टल वेन में जाएगा, पोर्टल वेन में से कहाँ जाएगा, लीवर में। तो यहाँ पे आ गया ग्लूकोज, राइट। नाउ दिस ग्लूकोज इज गोना एंटर इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हमने आगे ही पढ़ा कि सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आफ्टर पोर्टल वेन थ्रू लीवर, एंड फ्रॉम लीवर टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में से ग्लूकोज जो है वो मसल में जाएगा, एज वेल एज अदर टिश्यू रेदर देन दी मसल। अभी ग्लूकोज ब्लड में आ गया, तो अभी ये ग्लूकोज जो है वो अपटेक होगा विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, और ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा, मसल एंड अदर टिश्यू। अभी जो मसल में ग्लूकोज गया वो स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के स्वरूप में वो वहां पे स्टोर होगा। जितना ग्लूकोज चाहिए उतना यूटिलाइज होगा, और बिकॉज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, बिकॉज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होगा, बिकॉज हमको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन क्यों करना है, एनर्जी चाहिए इसलिए। तो उससे हमको क्या मिलेगा, पायरुविक एसिड। Now this pyruvic acid are converted into the lactic acid and acetyl coenzyme. This acetyl coenzyme is responsible for the Krebs cycle and finally हमको क्या मिलेगी, एनर्जी। तो इस तरह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा और फाइनली हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेंगी, और दिस एनर्जी इज यूजफुल फॉर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन और द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी। लेकिन यहाँ पे और भी सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज होंगे, गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी वाटर, एंड दिस गोना एंटर अगेन इनटू दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहाँ पे से कहाँ चला जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, राइट। नाउ दिस लैक्टिक एसिड, यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन
तो क्रेब्स साइकिल में चला गया और फाइनली एनर्जी जो है वो लिबरेट हो गई. नाउ दिस लैक्टिक एसिड अगेन गोज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड फ्रॉम दैट इट अफेक्ट द ग्लाइकोजन ओवर हियर. सी यहाँ पे लीवर में जो ग्लूकोज बचेगा थोड़ा पूरा का पूरा जो है वो लीवर सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, थोड़ा लीवर में स्टोर रहेगा और ये स्टोर्ड ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में होगा. नाउ विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड इट इज कन्वर्टेड इनटू द अमाइनो एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड. राइट, किसमें कन्वर्ट होगा? अमाइनो एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड. नाउ अदर टिश्यू में भी ग्लूकोज था तो उसका भी ऑक्सीडेशन होगा और फाइनली हमको मिलेगी एनर्जी प्लस H2 एंड CO2. These H2 and CO2 enter into the systemic circulation और यहाँ से lungs through जो है वो CO2 जो है वो हम एस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकालेंगे और एक्सक्रीट करेंगे. तो दिस इज हाउ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट्स गोना टेकन प्लेस इन अवर बॉडी. बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है और बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हमको मिलेंगी एनर्जी. दिस एनर्जी इज यूजफुल फॉर द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इन अवर बॉडी. सबसे पहले हमने डाइट में लिया ग्लूकोज, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है. स्मॉल इंटेस्टाइन में से ये ग्लूकोज जाएगा पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन में से जाएगा लीवर में. नाउ लीवर के अंदर थोड़ा ग्लूकोज स्टोर रहेगा, बाकी का जो ग्लूकोज है वो फाइनली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा. अभी ब्लड क्या करेगी? दिस ग्लूकोज को बांट देगी, फॉर एग्जाम्पल इनटू द मसल एंड द अदर टिश्यू. नाउ मसल में क्या होगा? मसल में एक प्रोसेस चालू होगी, वो प्रोसेस होगी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने की और वी कैन से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की. और जब भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो पायरुविक एसिड होगा. दिस पायरुविक एसिड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम. दिस एसिटाइल कोएंजाइम अगेन क्रेब्स साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और फाइनली हमको जो प्रोडक्ट चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो लिबरेट होगी. साथ में CO2 और H2 गैसेस भी रिलीज होंगे, वो वापस से सर्कुलेशन में चले जाएंगे. Now this lactic acid again enter into the systemic circulation and with the help of this lactic acid, this glycogen, this lactic acid again goes into the liver. First यहाँ पे था, देन आफ्टर यहाँ पे आएगा और थर्ड वन यहाँ पे लीवर पे. और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा? अमाइनो एसिड, दैट मीन्स प्रोटीन, एंड ट्राइग्लिसराइड, दैट मीन्स लिपिड मॉलिक्यूल. अभी जो टिश्यू में था ग्लूकोज कहाँ से आया था? ब्लड सर्कुलेशन से. तो वो ग्लूकोज का भी ऑक्सीडेशन होगा और फाइनली एनर्जी जो है वो मिलेगी. H2 CO2 अगेन यहाँ पे जाएंगे और विद द हेल्प ऑफ लंग, विद द हेल्प ऑफ एस्पिरेशन, CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाएगा. एकदम सिंपल है, इजी है. ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करो, जो एनर्जी मिले वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए यूज होगी. Now, what is the dietary fiber? Dietary fibers are the fibers. Basically, ये फाइबर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा एंड द डाइजेशन भी नहीं होगा. उसका डाइजेशन फाइनली कहाँ पे होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में. राइट, ये जो फाइबर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो फाइनली जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो क्या करेंगे? बैक्टीरियल फ्लोरा. हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं कि जो वो गट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ दिस बैक्टीरियल फ्लोरा इज इंक्रीज्ड बाय द डाइटरी फाइबर, बिकॉज ये उनको नेस्ट देगा, एक सपोर्ट देगा और उसकी मदद से क्या होगा? दिस बैक्टीरियल फ्लोरा इज गोइंग टू बी इंक्रीज. Now this bacterial flora is responsible for the degeneration or the digestion of the dietary fiber. And this is how digestion of the dietary fibers is going to be taken place. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होगा. कैसे होगा? बैक्टीरिया को बढ़ाएगा और दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द फाइबर. Some of the fibers are disrupted by the, or we can say the digested by the bacteria. Some of the fibers are still present into the large intestine, which are responsible for the formation of the soft fecus, or we can say the stool, and hence prevent the chronic constipation or other disease condition of the intestine, right? So it is responsible for the digestion as well as weight maintenance. This dietary fiber is important for the digestion purpose as well as the weight maintenance. Weight maintenance कैसे?
अगर हमारे डाइट में फाइबर्स ज़्यादा है तो वो स्टमक को जल्दी से एम्प्टी नहीं होने देगी और इस वजह से क्या होगा, हमको फुलनेस फील होगी, हैवीनेस फील होगी और इस तरह से हमारी एपेटाइट ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी और इस तरह से हमारा वेट मेंटेन रहेगा। नाउ रिड्यूस द कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल लेवल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। प्रिवेंट सच डिसीज कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल digestion related disorder, then after intestinal related disorder, then after chronic constipation, then gallstone, then inflammatory bowel disease, irritable bowel syndrome. This type of disease basically related to the GI tract are prevents by the dietary fiber. Mainly the dietary fibers होते हैं वो होते हैं cellulose, pectin, lignin and the gums, right? These are the basically dietary fiber present in our food. So the dietary fibers is the fibers which are not digested into the small intestine. It enter into the large intestine and help to increase the bacterial flora. Now this bacterial flora is responsible for the breakdown of the fibers. Some of the fibers is still present into the large intestine which is responsible for the formation of soft stool and hence it prevent the many of the disease related to intestine, right? It also help to improve the digestion. It also help for a weight maintenance. Now major component is cellulose, pectin, lignin and the gums. Thank you so much.